future workforce management, but various other dimensions linked to this, such as technological resource and security issues, also have to be carefully looked upon. It gives me immense pleasure and a moment of pride that even in this pandemic, our university is continuously striving to impart knowledge and to give an insight on various critical and important topics and continued this chain of sharing knowledge very successfully. This would not been possible without the determined efforts and visionary ideas of our Honorable Vice Chancellor Sir, respected HOD Sir, and hardworking members of this team. Now, I would like to start this session by a slogan of Swami Vivekananda. Take up one idea, make that one idea your life, dream of it, think of it, live on that idea. Let the brain, body, muscles, nerves, every part of your body be full of that idea and just leave every other idea alone. This is the way of success, and this is the way great spiritual giants are produced. Now, without any further delay, I would like to call upon Ms. Monica Pal, PhD Research Scholar of Commerce Department for Saraswati Vandana, and request all other participants to mute their mics. Monica. स्वाति, मोनिका नहीं दिख रही है. Okay, sir. I'm calling her. तब तक इस सेशन को मैं थोड़ा टेक ओवर कर लेता हूँ. थोड़ा सा इस ई ज्ञान सीरीज के बारे में आप सभी को बताना चाह रहा हूँ कि ये हमारा ई ज्ञान सीरीज का 8th लेक्चर है. जैसा कि मोनिका जी ने बताया, इस लेक्चर सीरीज में हम प्रयास कर रहे हैं कि देश के विभिन्न एकेडमिशियंस को अपने विश्वविद्यालय के छात्रों, इस देश के छात्रों, एकेडमिशियंस के बीच में लाएं, ताकि एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म, इंटीग्रेटेड नॉलेज बने. हमारे शोधार्थी, हमारे पीजी स्टूडेंट, हमारे यूजी स्टूडेंट, उन सभी को नए इश्यूज, इमर्जिंग इश्यूज, चैलेंजेस, उनके प्रोजेक्ट वर्क आदि के लिए एक नए आइडिया मिलते रहे. हम सभी बहुत खुशनसीब हैं कि एकेडमिशियंस इस पैंडेमिक के समय में भी हमें अपना समय दे रहे हैं. हमारे विद्यार्थी ध्यान से सुन रहे हैं और ये बड़ा एक अच्छा कल्चर डेवलप हो रहा है कि इस लेक्चर्स के बाद क्लासेस में, ऑनलाइन क्लासेस जो कि हम लोग ले रहे हैं, हमारे सभी शिक्षक बंधु ले रहे हैं, उसमें डिस्कशन होता है कि सर कल के लेक्चर में ये हुआ, अच्छा ऐसा हो सकता है, अच्छा ये हो सकता है. तो हम प्रयास कर रहे हैं एक अच्छा डेवलप करने की, एक अच्छे नॉलेज बैंक डेवलप करने की, और बड़ी खुशी हो रही है बताते हुए कि हाँ, वो नॉलेज बैंक डेवलप हो रहा है. कैसे हो रहा है? हमारे विद्यार्थियों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो रही है. इस ई ज्ञान सीरीज में हम लोगों ने 12 लेक्चर का लक्ष्य रखा है. 12 लेक्चर में आज 8वां लेक्चर है. बाकी 4 लेक्चर अभी और बाकी हैं, जिसमें हमारे पास आएंगे गढ़वाल यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर आर.सी. डंगवाल जी, हमारे पास कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से तेजेंद्र शर्मा जी आएंगे, और 2 एक्सपर्ट भी हमारे बीच आएंगे. तो डेफिनेटली यहाँ हम लोगों को बहुत सी चीजें सीखने को मिलेगी. मेरा आप सभी से निवेदन है कि जुड़े रहिए आखिरी तक. स्वाति जी, आप जुड़ गए फिर से, प्लीज टेक ओवर कर लीजिए. Okay, sir. So Monica is here for the Saraswati Vandana. Monica, please. या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्मसुत शंकरा प्रभृति भी दैवै सदा वंदिता.
सा माम पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा. Thank you. Now I request Professor Sirish Misa sir for the welcome speech. So please. Thank you, Swati. Thank you, sir. On behalf of the Department of the Commerce, Mahatma Gandhi Central University, Motihari, I extend my warm wishes to the team of eGyan Series 2.0. I would like to express my gratitude to all of you who are sincerely committed to making this informative event on challenges in HR during and post-COVID era a success. Most organizations have started focusing on scenarios for planning and taking necessary operational response to ensure business continuity post COVID 19. Organizations need to focus on building communication, trust, and transparency related to coronavirus pandemic to restore productivity and deliver on employee experience. Organizations have to make a lot of adjustment to their business plans and the way of working post COVID-19. They need engaged employees more than ever to get through this challenges period. These employees might struggle with feelings of uncertainty, isolation, not being in know, and more. Thus, the role of change agent that is of the HR professionals becomes crucial in this scenario. With social distancing being implemented and practices, it is difficult to have a standard method of process, policies, and engagement, leading to a new challenge for HR professionals, which need to be discussed. With these thoughts, I welcome you all this afternoon session on 8th lecture of eGyan series 2.0 on the topic challenges in HR during and post COVID era. I feel privileged and honored to welcome all the distinguished dignitaries who are connected via online mode to deliver a talk on the said topic challenges in HR during and post COVID era with the intent of active and interactive learning about the professional aspect of HR. First, I welcome our Honorable Vice Chancellor Mahatma Gandhi Central University Motihari, Professor Dr. Sanjeev Kumar Sharma, who is the pioneer of eGyan series idea. I would also like to welcome our Honorable Pro Vice Chancellor Mahatma Gandhi Central University Motihari, Dr. G. Gopal Reddy, for his motivation and support in organizing such programs. I heartily welcome Professor A.K. Sukla, Dean and Head, Department of Business Management and Entrepreneurship, Dr. Ram Manohar Lohia, Awadh University, Ayodhya, Uttar Pradesh, who would be the keynote speaker for this eGyan series on the topic challenges in HR during and post-COVID era. He is a great academician and gentleman. A very warm welcome to you, sir. I would like to welcome our chairperson of this eGyan series 2.0, Professor Ashish Srivastava, Dean, School of Education, Mahatma Gandhi Central University, Motihari. Welcome to you, sir. I would also like to welcome convener Professor Tirochan Sharma, Head, Department of Commerce, Mahatma Gandhi Central University, co-convener Dr. Subrato Ray, Organization Secretary Mr. Amrish Kumar, Dr. Shiven Singh, Dr. Ravish Kumar, Dr. Sunta Singh, and every students. I would also like to extend my sincere thanks to our Dean, Pandit Madan Mohan Malvi, School of Commerce and Management Sciences, Professor Dr. Pavnesh Kumar. I have every hope that our students would be immensely benefited from this session. Over to host. Thank you, sir. Now I would like to call upon Swati, all of yes, sir. Swati, Hello. Hello. Swati सुन पा रहे हैं? Yes, sir.
सर आपको आवाज आ रही है मैं मेरी? 1 मिनट बोलना चाहता हूँ, अगर अनुमति हो आपकी तो। ओके सर प्लीज। मैं अपने आदरणीय और मेरे मेंटर रहे पीएचडी के समय पर, जिन्होंने समय समय पर रास्ता ही नहीं दिखाया, अपितु जो खास करके मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था और मुझे अंग्रेजी में पीएचडी लिखना था, तो जब अवध विश्वविद्यालय में किसी से पूछा हमने कि भाई हमें जो है अंग्रेजी में लिखना है, हम तो हिंदी के स्टूडेंट हैं, तो सबने कहा कि अगर सबसे अच्छी अंग्रेजी कोई अवध विश्वविद्यालय में लिखता है, पढ़ा सकता है, बता सकता है और विषय के बारे में भी प्रकांड विद्वान है, तो आप प्रोफेसर अशोक शुक्ला जी के पास जाइए। और ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि सर ने पिछली बार भी इस, जो आज 8वां लेक्चर है, ये 3रा लेक्चर होने वाला था, तब भी उन्होंने अनुमति सहर्ष स्वीकार करके दी थी। और कोविड की सिचुएशन में उनके आसपास के जो पड़ोसी थे उसमें एक जो इस तरह की घटना हो गई, जिस कारण से उस लेक्चर को उस परिस्थिति में हम लोगों को आगे बढ़ाना पड़ा, पोस्टपोन करना पड़ा। उन्हें वो अपना समय निकाल करके, वो उनका इतना बिजी शेड्यूल है, कल भी मैंने उनसे बात किया, परसों किया, तो 27 को उनका काम लगा था, 28 को भी लगा, 31 को उनको कई जगह जाना है। इस देश के जो कुछ चुनिंदा लोग हैं जो ह्यूमन रिसोर्स पे और मैनेजमेंट पे, एंटरप्रेन्योरशिप पे एक अपना पूरा मत रखते हैं, अपनी बात रखते हैं, उनमें से एक हमारे पास हैं। मैं उनका अपनी तरफ से, अपने विभाग की तरफ से, वैसे तो औपचारिक रूप से स्वागत हो गया है, लेकिन क्योंकि मैं कोविड से इन्फेक्टेड था अभी 1 महीने से और मुझे बोलने के लिए मना किया गया ज्यादा, इसलिए मैंने उसको नहीं रखा। मैं अपनी ओर से उनका स्वागत करता हूं। हमारे साथी मित्र और एजुकेशन स्कूल के डीन प्रोफेसर आशीष श्रीवास्तव जी ने भी मुझे पुनः समय दिया इस व्याख्यान की अध्यक्षता करने के लिए। मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूं और हार्दिक स्वागत करता हूं। विशेष रूप से प्रोफेसर शुक्ला सर, जिनको सुनने के लिए मैं भी 1 वर्ष से प्रतीक्षा कर रहा था। जब से मैं हेड बना हूं, मैं सोचा सर आरडीसी में आएंगे, बोर्ड ऑफ स्टडी में आएंगे, लेकिन कभी समय नहीं लगा। इतनी प्रतीक्षा के बाद आज उनको सुनने का मौका मिलेगा। सर आपका आभार, आपका धन्यवाद, नमस्कार। स्वाति, ओवर टू यू। Thank you so much, sir. Now, I would like to call upon my batchmate, Mr. Anup Kumar, for the introduction of our keynote speaker, Professor A.K. Shukla, sir. Anup. Anup. Oh, sorry. Thank you, Swati. Sorry, the mic was actually mute. Thank you, Swati. A very good afternoon to one and all. I, Anup Kumar, MPhil Research Scholar, welcome you to the 8th session of eGyan Series 2.0. Our today's keynote speaker is a very renowned, inspiring, experienced, and a man of great stature in the academic field. Through in and throughout his life, he has been continuously serving in the academic field and contributing to the society. He has a very gigantic experience of teaching and research of more than 35 years. He has also been the director of IQAC and CDC and has worked as an expert in the state level syllabus committee. And currently, he is serving as a dean and head of business management and entrepreneurship in RML Awadh University, Ayodhya. He is highly involved in research field and also under his remarkable guidance, 21 PhD scholars have passed and 8 are still pursuing. This certainly shows his passion and dedication towards the academic and profession. Even in this pandemic era, he has been striving continuously for the welfare of the society and of scholars and in the nation building. Please welcome inspiring, magnanimous Professor A.K. Shukla, sir. Sir, I invite you for your guidance. Thank you, sir.
सर अपना माइक ऑन कर लीजिए सर। अभी हो गया? यस सर, ठीक है। Thank you. Thank you for a nice words about me. To begin with, मुझे सबसे पहले अपना प्रणाम प्रदान करने की अनुमति, और सर्वप्रथम मैं कुलपति जी प्रोफेसर संजीव शर्मा साहब को सादर प्रणाम करता हूं कि उनकी प्रेरणा से इस विश्वविद्यालय ने इस ज्ञान सीरीज का आयोजन किया। उनके द्वारा अनेक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। यद्यपि मैं भौगोलिक रूप से दूर हूं, लेकिन मानसिक रूप से तो इस विश्वविद्यालय से जरूर जुड़ा हूं, और खास करके जब त्रिलोचन जी वहाँ हैं तो मैं अपने आप को ही वहाँ पाता हूँ। मैं अपना विनम्र प्रणाम प्रोफेसर आशीष श्रीवास्तव साहब को भी देना चाहता हूँ। कन्वीनर त्रिलोचन जी ने मुझे अवसर दिया श्रृंखला में भाग लेने का, मैं उनके प्रति भी अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहता हूँ। को कन्वीनर श्रीश मिश्र जी ने, और अब आप लोगों ने मेरे विषय में जो बहुत ढेर सारी बातें कही, मुझे नहीं लगता कि मैं उस काबिल हूँ, लेकिन आपकी अपेक्षाओं और आकांक्षाओं पे खरे उतरने की मैं कोशिश अवश्य करूंगा। मुख्य विषय, सबसे पहले तो हम बधाई देना चाहेंगे आप लोगों को इस टॉपिक के चयन के लिए। टॉपिक का चयन ठीक है, पैंडेमिक हम लोग तो पिछले 2 वर्षों से इसको झेल ही रहे हैं पूरे भारतवर्ष में, और सबसे बड़ी चीज है कि जो सिलेक्शन ऑफ टॉपिक है, चैलेंजेस और उनकी ड्यूरिंग एंड पोस्ट पैंडेमिक। अब देखिए, अगर हम नॉर्मली हम लोग ये पाते हैं कि पोस्ट पैंडेमिक की बात होती है, लेकिन अभी चूंकि पोस्ट कब होगा कब नहीं होगा इसका कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए इन शब्दों का चयन जो हुआ है, मैं उसके लिए आयोजकों को मैं उनकी प्रशंसा करता हूं, और उनके प्रति उनकी सोच के प्रति मैं सल्यूट करता हूं कि एकेडमिक्स में यदि हम टॉपिक्स का सिलेक्शन और शब्दों का चयन इस प्रकार से करें तो हम समझते हैं कि हम लोग अपने जो उद्देश्य है उसकी आधी प्रतिपूर्ति स्वयं करते हैं। अभी हम हैं कहाँ वर्तमान में, हमको यहीं से मैं प्रारंभ करना चाह रहा हूँ। पिछला 1 वर्ष हमने देखा, ये वर्ष हम देख रहे हैं, और वैज्ञानिक भी इस बात को बताने में अभी सक्षम नहीं है कि हम इससे पूर्ण रूपेण कब उबर पाएंगे। भारतीय होने के नाते, अपनी वेद परंपराओं का में विश्वास रखने के नाते, हम लोग जब अपना वश नहीं चलता है तो देव शरण में जाते हैं और ईश्वर शरण में जाते हैं, और उसको भी हम लोगों ने देखा और पढ़ा। हम समझते हैं कि बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, और हमारे वेदों में भी ये वर्णित है कि 2022 तक ये स्थिति बड़ी खराब। अब मुझे लोग कह सकते हैं कि ये थोड़ा पोंगा पंडित की ओर जा रहे हैं, लेकिन जब आपदा आती है तो व्यक्ति जो है वो चारों तरफ दौड़ता है, ढूंढता है कि कहीं कोई आसरा मिले। और कितने आप देखें सोशल मीडिया पर पोस्ट और चीजें आ रही हैं कि हे प्रभु, आप अपना रथ प्रारंभ करो और अब इस प्रलय को रोको। खैर, ये सारी बातें अलग हैं। मैंने शुरू यहाँ से किया था कि हम कहाँ हैं, तो वी आर इन द मिड ऑफ द थिंग्स। प्री हम लोगों ने देखा, फेज प्रारंभ हुआ पिछले वर्ष से, और इस वर्ष ये और घातक था। घातक इसलिए था कि पिछले वर्ष की जो का मृत्यु दर था, जो उपाय सरकार द्वारा किए गए थे उनमें काफी कुछ नियंत्रित हुआ, लेकिन इस वर्ष आप ये पाएंगे कि आपका हर दूसरा, चौथा, 8वां, 5वां घर में कोई ना कोई हादसा हुआ है जिससे आप परिचित हैं, और जो आपके मनोबल को तोड़ने वाला होता है। खैर, ये आपदा आई है,
हम लोगों ने भी लास्ट ईयर संजीव शर्मा साहब कुलपति जी को भी रिक्वेस्ट किया था, मनोज दीक्षित जी जो हमारे यहाँ कुलपति थे, तो एक हम लोगों ने इस पे वेबिनार किया था काफी लंबा चौड़ा, और उसमें हम लोगों ने इसको कंपेयर किया था विद दी 1918 पैंडेमिक विद 2019। यूजीसी की भी गाइडलाइन थी और बहुत ढेर सारी बातें उसमें बताई गई थी। अब चूंकि हमको हमारा टॉपिक एचआर पर हमको कन्फाइन करना है, बात करनी है आप लोगों से, तो वर्तमान में अगर आप देखें तो एक अक्सर एक कैचवर्ड आजकल आया हुआ है कि इट्स अ न्यू बैलेंस which has been created because of this pandemic in the society। जो हमारा पूर्व का बैलेंस रहा, जहां हम अपने आप को पाते थे कि वी आर इन अ बैलेंस सिचुएशन, अब वो स्थिति बदल गई। स्वाति ने अपने प्रारंभिक उद्बोधन में भी बहुत सारी बातें बताई कि अब ये हो गया है जो 1 साल पहले हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि हम ई मोड के जरिए आपस में एक दूसरे से बात करेंगे, अपने विचारों का आदान प्रदान करेंगे। हम तो केवल अपने टेलीफोन पर और अपने लैपटॉप्स पर खाली अपने में संकुचित थे, लेकिन अब ये एक बड़ा माध्यम हो गया है अध्ययन, अध्यापन और विचारों के आदान प्रदान का। तो देखिए, एक तो यही एक परिवर्तन आ गया जो हमने आपने कभी सोचा नहीं था, और ये आया। इस प्रकार से अगर आप देखें इन एनी वॉक ऑफ लाइफ, किसी भी जीवन के क्षेत्र में आप चले तो आप पाएंगे कि चीजें बदल गई हैं। बड़ी सामान्य व्यावहारिक बोलचाल की भाषा में हम आपसे कहें तो अब हम और आप किसी अतिथि का स्वागत करने की स्थिति में नहीं। कोई हमारे घर आता है तो पहले हम उसको तजवीज देखते हैं कि मास्क लगाया है कि नहीं, और अगर वो नहीं लगाया तो हम लगा के और कितनी दूरी पर रह के उनसे बात करें। अब वो समय गया कि जब हम बैठते थे और चाय पीते थे और ये करते थे, लोगों से इंटरेक्ट करते थे, हाथ मिलाते थे, वो गया। और अभी आने वाले 1-1.5 वर्षों तक हमको लगता है कि वापस लौट के आएगा नहीं। तो ये एक बुनियादी छोटी छोटी चीजें हैं जिनके आधार पर मैंने सोचा कि मैं अपनी बात को प्रारंभ करूं आप लोगों से। और जब हम एक चैलेंजेस की बात करते हैं ड्यूरिंग दिस एरा, तो उसमें आप ये पाएंगे कि एक बड़ी स्थिति जो खराब हुई है। अभी मैं एक आंकड़ा देख रहा था और स्टैटिस्टिक्स ये कह रही थी कि मार्च में द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वाज 6.5%। अप्रैल में ये फिगर बढ़ के हो गई 7.97% विद इन अ मंथ। अगर आप, और आपको ताज्जुब होगा ये जानकर, ये गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स है, हम अपने ओर से नहीं कह। 20 मई को जब ये स्टैट्स मुझे मिला है तो 20 मई में द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वाज टू द ट्यून ऑफ 14.95%। ये 2021 के बात में करता हूँ। मार्च 6.5%, अप्रैल 7.97, ऑलमोस्ट 8, एंड मई, एक महीना, वो भी 20 दिन मई का, और उनमें इट हैज इंक्रीज अप टू 15%। अब इसके अलावा जो एक और फिगर हमको मिली वो ये मिली कि हमारे हिंदुस्तान में अराउंड 75 lakhs ऑफ पीपल हैव लॉस्ट देयर जॉब्स बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक। आप सभी शिक्षा जगत से जुड़े लोग हैं, आप सभी मास मीडिया से जुड़े लोग हैं। आपने ये भी सुना होगा कि रतन टाटा जी ने पिछले वर्ष ये कहा था कि यह वर्ष रुपया और पैसा कमाने का नहीं है, ये वर्ष अपनी जान को बचा के जीवित रहने का है। और वो अनफॉर्चुनेटली वो कंटिन्यू हो गया है अभी मई 2021 तक भी, जिस महीने में हम हैं। लेकिन इतना कहने से तो काम चलना नहीं है। हमको और आपको अपनी तैयारी तो करनी है। रोज हम और आप अखबारों में और टीवी में ये डिबेट्स देख रहे हैं कि आप सो रहे थे कि आप जग रहे थे, क्यों नहीं आपने व्यवस्था की, सेकेंड फेज में इतनी बड़ी महामारी हुई तो आपने ये कर दिया और वो कर दिया। खैर, थिंग्स अपार्ट, ये सब पॉलिटिकल लोगों का गेम है, उससे हम लोगों का बड़ा मतलब नहीं है यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे।
the main important focus that we have to concentrate upon, जिस पर हमको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, कि जैसे मैंने कहा कि एक न्यू बैलेंस हैज बीन क्रिएटेड। जब हम ह्यूमन रिसोर्सेस की बात करते हैं तो नॉर्मली हम जब एमबीए करते हैं, आप भी करे हैं, हम जब पीएचडी करते हैं या हम एमफिल करते हैं या हम बीबीए करते हैं और एचआर की बात करते हैं, तो एक व्यावहारिक बात ये आती है कि हम अपने आप को कन्फाइन कर लेते हैं टू ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडस्ट्री, कि एचआर इंडस्ट्री में क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होगा, मे बी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या व्हाटएवर। लेकिन यहाँ हमको हमारा दृष्टिकोण जो है उसको बहुत व्यापक होना पड़ेगा। द कंट्री एज अ होल को हमको देखना है, और उसको देखने के अलावा हमको ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर दोनों का ध्यान देना है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ ये भी है कि हमारा जो मिडिल इनकम ग्रुप है, जो एक मेजर चंक है इंडिया का, भारतवर्ष का, उस मिडिल इनकम ग्रुप को भी हमको ध्यान में रखना है कि देखिए अपर क्लास और लोअर क्लास, इनका एक बड़ा सिंपल स्ट्रेट जैकेट है और इनका जीवन शैली और ढर्रा इनका दूसरे ढंग का है। वल्नरेबल कौन है? वो हमारा, और ये जो मिडिल क्लास है, मध्यम वर्गीय लोग हैं, ये इनकी मैक्सिमम इनका कंट्रीब्यूशन है गवर्नमेंट में, इनकम टैक्स के फॉर्म में, अदर टैक्सेस के फॉर्म में। तो इनको तैयार करना, इनके लिए अवसर तलाशना। मैं ये नहीं कहता कि हम लोअर इनकम ग्रुप को और हायर इनकम ग्रुप को एकदम इग्नोर कर देंगे, हम इग्नोर नहीं कर रहे हैं, इंक्लूसिव तो हम रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन हमको इनके लिए भी एक विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। अब बात आती है कि अभी का एक, जैसे हमने एक सांख्यिकी आपको बताई, ये हो गया, वो हो गया और वो, अब एज एन इंडिविजुअल ऑफ एचआर आपको करना क्या होगा, कहाँ कहाँ आपकी सोच जानी चाहिए। मैं ऐसी कोई अजूबी बात नहीं कर रहा हूं जिससे आप परिचित न हो, बस केवल यह है कि हम अपने हिसाब से एक ध्यान आपका केंद्रित कराने के बात करते हैं। हमको आपको अब ये विचार करना है कि अब जो एचआर हम ट्रेन करेंगे, एंड दैट टू एट अ वेरी रैपिड पेस, वो उनकी ट्रेनिंग में उन क्या स्किल सेट्स होंगे जिन पर हमको कॉन्सेंट्रेट करना है। शैल दे बी द अर्लियर वंस, जिससे कि अभी तक हमारी इकोनॉमी चलती रही और हम लोग चलते रहे, या वी हैव टू डेवलप और वैल्यू एडिशन, अ न्यू स्किल सेट along with the old one, और आपको ये निर्णय लेना पड़ेगा कि किन स्किल सेट से हमारी इकोनॉमी जो अभी बहुत नीचे आ गई है वो एक रैपिड रेट से प्रोग्रेस करेगी। ये कॉम्बिनेशन, और इसका कोई गुरु मंत्र नहीं है, इसका कोई वेद वाक्य नहीं है कि आप इसको उठा के कर लीजिए और आपका काम हो जाएगा। इट्स नॉट लाइक दैट। It requires a lot of pondering. It requires a lot of mental exercise. It requires a lot of information from the market, from the job providers, from the situation, from the atmosphere, from the environment. और फिर उस एक स्किल सेट की हमको एक तैयारी करनी होगी और उनके लिए अप्रोप्रिएट टेक्निक्स हमको अडॉप्ट करनी पड़ेंगी एज एचआर पर्सन्स दैट वी हैव टू लुक इनटू। हमको ये भी देखना है, जब हम इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं तो हमको गवर्नमेंट, ऑर्गेनाइजेशंस, जॉब प्रोवाइडर्स एंड अदर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, इनमें हमारा फोकस कहाँ हो, किस तरह से हमारी हैंड होल्डिंग हो, किस तरह से हम आगे बढ़ें, क्या मॉडल हम डेवलप करें, ये इस तरह के चैलेंजेस हमारे और आपके सामने हैं जिन पर हमको विचार करना है। अब जब विचार करने की हम बात कर रहे हैं और एक कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल एनवायरनमेंट को देखते हुए इन चीजों को हमको निकाल के ले आना है, जैसे मैंने एक बात आपको स्किल सेट की कही, वो देखती है, तो यहाँ हम एक बुनियादी जो एचआर का बेसिक प्रीमाइसिस है, दी कोर कौन,
ह्यूमन रिसोर्सेस में देखिए फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आप पढ़ते हैं, आप जानते हैं, आपने सुन रखा है, कई जगह देखा है। मैनेजमेंट में और विशेष करके एचआर में भी फंक्शंस हम जानते हैं क्या होते हैं। मेरा एक थोड़ा सा दूसरा एंगल इसमें होता है, और वो अगर आपने डेल बीच की किताब पढ़ी हो एचआर में, तो उन्होंने इन फंक्शंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया ह्यूमन रिसोर्सेस पे। उन्होंने कहा कि जो मैनेजर आपके एचआर के फंक्शंस हैं, इनको आप यू कैन डिवाइड देम इनटू 2 कैटेगरीज, और एक कैटेगरी का उन्होंने नाम दिया मैनेजरियल फंक्शन, और दूसरे कैटेगरी का नाम दिया उन्होंने ऑपरेटिव फंक्शन। मैनेजरियल एंड ऑपरेटिव। मैनेजरियल फंक्शंस में उन्होंने क्या बताया? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, यही 4। अपने कॉमर्स में पॉलिटिक्स का पढ़ा, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में बहुत ढेर सारी बातें कही, लेकिन जब बेग साहब ने डिस्कशन किया और उन्होंने अपनी किताब लिखी और उस पर उन्होंने बात की, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा इसका दृष्टिकोण दूसरा है। उन्होंने कहा मैनेजरियल फंक्शंस दे आर नेसेसरली टू बी परफॉर्म बाय मैनेजर, और वो कौन से होंगे? वो होंगे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोल। डायरेक्टिंग को उन्होंने और भी नाम दिए, उसका नाम दिया एक्चुएटिंग, मोटिवेटिंग, कमांडिंग, ये भी उन्होंने उनके नाम दिए डायरेक्टिंग फंक्शन के। और आपने पढ़ा हुआ है, आप अच्छी तरह जानते हैं, जिस पर मैं बहुत ज्यादा नहीं बात करूंगा, कि हमको पहले प्लान करना है, उसके हिसाब से हमको ऑर्गेनाइज करना है। ये हम करेंगे, करना पड़ेगा हमको इस नई स्थिति में। और ऑर्गेनाइज करना है, हमको देखना है कि हमारी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उस हिसाब से हमको चीजों को अरेंज करके, और फिर डायरेक्टिंग मोड में, कमांडिंग मोड में, एक्चुएटिंग मोड में आके, एंड देन वी हैव टू गो फॉर द कंट्रोल और कंट्रोलिंग फंक्शन की जो हमने प्लान किया था उस हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं। जिन ऑपरेटिव फंक्शंस की बीच साहब ने बात की, उनमें उन्होंने कहा कि द ऑपरेटिव फंक्शंस आर द प्रोक्योरमेंट, सेपरेशन। अब आप इनमें देखिए तो प्रोक्योरमेंट को जो हम पुराने ट्रेडिशनल भाषा में हायरिंग और फायरिंग और सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग की बात करते थे, उसको उन्होंने कहा कि दिस इज प्रोक्योरमेंट। डेवलपमेंट में उन्होंने ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की बात की। कंपनसेशन में उन्होंने व्हेन टू पे, व्हाट टू पे, हाउ टू पे, इन सारी चीजों के बारे में उन्होंने बात किया। फिर उन्होंने इंटीग्रेशन की बात किया कि हर every nook and corner of the organization is to be integrated। फिर एक उन्होंने मेंटेनेंस की बात की कि इनको स्टेटस को मेंटेन करते हुए हमको चलना है। और लास्ट में उन्होंने सेपरेशन की बात की, where we permit an individual or the person to go away from the organization either on his own or in most unpleasant situations. Sometimes we ask individuals to say a goodbye to them and they move ahead. So whatever the mode might be, हम यहाँ वो बात नहीं कर रहे हैं। सेपरेशन इस पैंडेमिक ने तो 75 लाख का हम कर ही दिया अभी मई तक में, अभी और पता नहीं कितने होते होंगे और हो रहे होंगे। अब सिचुएशन ये आई कि ऑल दीज मैनेजरियल एंड ऑपरेटिव फंक्शन, ये जो हमारे पहले थे, अब इनको हमको एक नया जामा पहनाना है। और इनको पहनाना किस ढंग से है कि जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं उनमें से जो स्किल सेट हमको चाहिए, जो नेचर ऑफ एक्टिविटीज हम प्रायोरिटी पर देंगे कि इनको हमको परफॉर्म करना है, उनके हिसाब से वी हैव टू डिफाइन एंड डिजाइन, एंड दैट टू एट अ वेरी रैपिड पेस, कि हमको ये करके और अपने देश को, राष्ट्र को पटरी पर ले आना है। देखिए समस्याएं आप सभी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं क्या है। इस वर्ष हम लोग बहुत ज्यादा भयग्रस्त रहे हैं, पिछले वर्ष इतना डरे हुए नहीं थे।
लेकिन इस वर्ष डर ने बहुत ज्यादा लोगों को परेशान किया, और आप इस बात को अच्छी तरह जानते। अब हमारी बात जब हम हैंड होल्डिंग की करते हैं, हम जब गवर्नमेंट की बात करते हैं, हम इंडस्ट्री की बात करते हैं, हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, और हम और स्टेक होल्डर्स की बात करते हैं, तो हम अभी इस प्लेटफॉर्म पे तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन वी हैव टू डेवलप एन इंफ्रास्ट्रक्चर, वी हैव टू डेवलप अ प्लेटफॉर्म, वी हैव टू डेवलप मैकेनिज्म, जहां की ये सारे लोग अपनी बातों को एक जगह पर आके कहें और वो डिसिमिनेट हो, वो लोगों में शेयर हो, और एक थॉट प्रोसेस डेवलप हो। आज आवश्यकता इस बात की है। आपने शुरू में भी कहा था कि ये स्थिति ऐसी है कि इस आपदा में क्या करें। एक इसमें मैं ये कह रहा हूं, अभी इतनी सारी बातें मैंने की, और ये काफी मैं एक तरह से मैं कह सकता हूं कि भयावह भी थी और नकारात्मक थी। तो इन भयावह और नकारात्मक बातों से कोई हमको बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। हमको साहस कहाँ से लेना है? हमको साहस लेना है उन अस्पतालों से, हमको साहस प्राप्त करना है उन डॉक्टरों से जो अपनी जान जोखिम में लेके हमारे जैसे कितने गंभीर रोगियों को, और वो रोज पीपीई किट पहन के और रात दिन हमारी आपकी सेवा में रहे और जान हथेली पे लेके वो भिड़े रहे। हमको साहस करना है, डिराइव करना है हमारी मिलिट्री से। हमको कोरोना वॉरियर से लेना है कि अगर ये मौत के मुंह में जाकर के और हमारी और आपकी सेवा और रक्षा कर सकते हैं, तो फिर हम भी इनसे प्रेरणा लेके, और हम अपना जो जिस स्तर पर हम हैं, जो भी कंट्रीब्यूशन हम समाज के लिए और राष्ट्र के लिए कर सकते हैं, हमको उसमें आगे बढ़ना है और अपना योगदान देना है। अब योगदान देने में हमको ये देखना है कि भाई ठीक है, योगदान हम सब देंगे, कहाँ दें, किस जगह से, क्या करना है, हमको क्या कर सकते हैं हम। तो मैंने कहा अभी अब हम लोग में एक ये भी बात आई कि प्रधानमंत्री जी भी हमारे कहते हैं कि आपदा में अवसर तलाशो, सी द अपॉर्चुनिटीज इन द क्राइसिस। और एंटरप्रेन्योर कौन है, उद्यमी कौन है? उद्यमी की यही पहचान होती है कि जहां सामान्य जोखिम होता है, जहां गंभीर जोखिम होता है, जहां एक साधारण व्यक्ति उससे हट जाता है, एक प्रबंधकीय कौशल प्राप्त किया हुआ व्यक्ति भी वहां साहस नहीं कर पाता है, एक उद्यमी वहीं पैर डालता है। और जब वहां वो पैर डालता है तो उस आपदा से जो वो अपॉर्चुनिटी लेके आता है, मैं ये नहीं कहता कि 100% सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन जो होते हैं तो उनके लिए फिर द स्काई इज द लिमिट। एक डायमेंशन हुआ प्रॉब्लम्स का कि क्या हो रही है। अब दूसरा डायमेंशन है कि हमको अपॉर्चुनिटीज हैं कहाँ, हमको क्या प्रायोरिटी लेनी है। जो एक मेरे विचार में है, मैं अब ये आप लोग, ये अच्छी बात बच्ची ने बताई कि इस ज्ञान सीरीज का एक ये भी आउटकम है। वो क्या कहते हैं, डॉक्टर बोल रहे थे जब अपने वेलकम स्पीच में, तो उन्होंने कहा कि हम केवल नॉलेज बैंक ही नहीं तैयार कर रहे हैं। नॉलेज सीरीज में जब कोई लेक्चर होता है तो बच्चे दूसरे दिन क्लास में डिस्कस करते हैं कि ये बात ऐसी हुई और ये होना चाहिए। तो मैं ये चाह रहा हूं कि ये चीजें कल से फिर आपके क्लासेस में भी अगर डिस्कस हों तो मैं समझता हूं कि मेरा प्रयास थोड़ा बहुत सार्थक होगा। अब हमको एक ये कोल्ड ड्रिंक का विज्ञापन आता है, उसमें आप देखते होंगे डर के आगे जीत है कहते हैं। वो एक मोटरसाइकिल है, पहाड़ी दुर्गम रास्ते पर है, और वो कहते हैं कहाँ जाएगा, और कूद के आगे पड़ता है, देन ही से इसके डर के आगे जीत। इस डर के आगे हमको भी जीतना है। ये दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास हमको अपने आप में पैदा करना है। अब उसके लिए ठीक है, हम विजेता होंगे। हमको एक जो दृष्टि रखनी है वो ये रखनी है कि किन एरियाज को हम पहले टैप करें कि जिससे हम अपनी इकोनॉमी को एक तेज गति पर आगे ले चले,
जो बाकी सेक्टर्स हैं उनमें तो हम धीरे धीरे करके डैमेज रिपेयर करेंगे। देखिए, इस समय सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी की जो एरियाज हैं आप देख रहे हैं, एक तो फार्मा इंडस्ट्री, चाहे वो आप दवा के बारे में बात कर लें, चाहे वो वैक्सीन के बारे में बात कर लें, चाहे रिसर्चेस के बारे में बात कर लें, तो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी जो निकल के आ रही है वो हमको फार्मा इंडस्ट्री में आ रही है। हम अपॉर्चुनिटी की इसलिए बात कर रहे हैं कि बहुत ढेर सारे सेक्टर हमारे इसमें लगभग मृत प्राय हो गए हैं इस पैंडेमिक में। पिछले साल 1.5 साल का जो ये अकाल वाला ये पीरियड आया है, अवसर कहाँ है? हमने कहा एक तो फार्मा इंडस्ट्री, दूसरा कहाँ है? ये हमारी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सेक्टर है, जिस माध्यम से हम और आप जुड़ रहे हैं एक दूसरे से, ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। हम गांवों में पहुंच चुके हैं, रूरल एरिया हमारी अब तो स्टैटिस्टिक्स बदल गई है। हम लोग जो पढ़ते थे तो ये कहा जाता था कि अराउंड 80% ऑफ द पॉपुलेशन द कंट्री रिसाइड्स इन विलेज, वो घट के 3/4 हुई, फिर 70% हुई। अब लिटरेचर्स में आपको कभी 65% और 68% में मिलता है कि ये हो गया है। तो खैर उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन ये जो सेक्टर है हमारा आईटी सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सेक्टर, गांव-गांव में दस्तक दे चुका है। हर घर में मोबाइल फोन है, हर घर में चीजें हैं। आज भी हम आपसे बात कर रहे हैं, हमारा लैपटॉप नहीं ठीक है, हम अपने मोबाइल से ही आपसे बात कर रहे हैं। इस सेक्टर में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। जब टीचिंग मटेरियल, स्वयं पोर्टल और ये आप इन चीजों को देखें तो यहाँ हमको अवसर है, यहाँ हमको अपना स्किल सेट रिफाइन करना है और डेवलप करना है। यहाँ हमको ये देखना है कि व्हाट एल्स कैन वी डू सो दैट वी कैन मूव अहेड। और टेक्नोलॉजी तो आप जानते हैं कि ये बड़ी रैपिड चेंजिंग है। आज एक प्रोडक्ट यहाँ पर मार्केट में है और 10 दिन बाद पता चलता है कि एक नया वर्जन आ गया और पुराना ऑब्सोलीट हो गया। तो इस रैपिड चेंजिंग इकोनॉमी का जो मैन पावर तैयार करना है वो हमको आपको करना है। वो हमको देखना है कि किन सेक्टर्स में इनका यूज है और इनको किन स्किल सेट्स में हमको इफिशिएंट करना है सो दैट वी कैन मूव अहेड। तीसरी जो एक हम बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको कर रहे हैं अवसर वाली, वो ये है कि हमको एक जो चाइनीज डोमिनेंस है, हर साल से हम लोग ये सीखते हुए चले आ रहे हैं कि हमको वहां पर रोक लगानी है। अब ये बहुत सारी सर्कल्स में आप ये पा रहे होंगे, बहुत सारे दबी जबान से लोग ये कहते हैं कि आज का ये जो मामला है, ये जो पैंडेमिक आया हुआ है, इस पर लोग दबी जबान से चाइना को दोषी ठहरा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं, जिसका मेरे पास कोई ऑथेंटिक रिकॉर्ड नहीं है, जिसको मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये चाइना ने थर्ड वर्ल्ड वॉर खेला हुआ है and it's a kind of chemical warfare which has been initiated by them, of which I do not have a solid proof. अभी अमेरिकन यूएस प्रेसिडेंट ने कल कहा है कि हम ये कोविड-19 पर अपना स्टेटमेंट और अपनी रिपोर्ट हम 1-2 दिन में दुनिया के सामने ले आएंगे। ट्रम्प भी, अगर आपको याद हो तो शुरुआत में यही कहते थे कि इट इज ए चाइनीज क्रिएशन। ये वुहान में एक लैब से शुरू हुआ और क्या हुआ, अब उस कॉम्प्लिकेशन में हम नहीं जा रहे हैं। हमारा काम क्या है एज एचआर इंडिविजुअल्स, स्टूडेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस, हमको चाइना की एंट्री के गैप्स को प्लग करना। हम बड़ी, अगर वो आ सकते हैं, हम ये नहीं कहते कि हम आज ही की तारीख में अगर वो एक 1000 रुपए का हैंडसेट लेके मार्केट में आ जाते हैं तो हम भी लेके चल जाएंगे। हम ये नहीं कहते कि वो एक दिया बना देते हैं हमारी दिवाली पर और हमारे मार्केट को पकड़ लेते हैं और गणेश और लक्ष्मी की मूर्ति बना लेते हैं तो कल से हम ये कर लेंगे, ये हम नहीं कहते। बट द फोकस ऑफ आवर थॉट प्रोसेस, द चैनलाइजिंग ऑफ आवर एनर्जी, वो हमको उस डायरेक्शन में ले जाना। हम अपनी अगर मिडिल इनकम ग्रुप की मार्केट को इंटैक्ट रख पाए तो ये हमारी बहुत बड़ी जीत होगी, जहां हम अपने इंडिजिनस प्रोडक्ट से, हम अपने स्वदेशी सामानों से, बड़े गर्व की बात हम लोग करते थे कि हमारी स्वदेशी वैक्सीन है
जो कोविड-19 को लड़ रही है। डीआरडीओ ने एक टैबलेट डेवलप किया जिसको अभी देखना है कि वो हो पाया कि नहीं हो पाया। खैर ये मार्केटिंग और उसकी बात है, लेकिन उन्होंने किया। और हमारे ऊपर ये आपदा आई है, अब पता नहीं मैं गलत हो सकता हूँ, बाद में हमको लगता है कि ये बात कहीं ना कहीं से निकल के आएगी कि भारतीय मिडिल इनकम ग्रुप की मार्केट को पकड़ने के लिए ये एक षड्यंत्र हुआ था फार्मा इंडस्ट्रीज का और इनका। आई डोंट नो आई एम ट्रू और नॉट, और मैं ये सोचता हूं कि मैं गलत ही हूं, क्योंकि ये स्थिति बड़ी भयावह है। तो इन चीजों को दरकिनार करते हुए हमको ये देखना है कि वी गॉट टू क्रिएट अ चेक एंड बैलेंस, कि चाइनीज इंसर्जेंसी जो है उसको हम रोक लें। और जब हम अपने देश में अब ये स्किल सेट तैयार कर लें, हम अपने देश में ये ट्रेन्ड मैन पावर तैयार कर लें कि जो उनके गैप्स को प्लग कर पाएगा, तो फिर हम एक बहुत बड़ी शक्ति बनकर खड़े होंगे। हमारे पास देखिए बुद्धि और विवेक की कमी नहीं। औसत भारतीय आप ये पाएंगे, भारतवर्ष कम से कम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में तो दुनिया का बादशाह है। इसमें ये कोई हमको बताने वाली बात नहीं, ये आप भली भांति जानते हैं। हमने कितना प्लान करके ये किया था, आई कीप माई फिंगर्स क्रॉस्ड ऑन इट, कि हम क्या ये सोच के सुंदर पिचाई बनाए थे कि वो माहिर गूगल का मालिक बनेगा। हमने क्या इस तरह की ट्रेनिंग इसलिए दी थी कि दे विल बी रूलिंग द वर्ल्ड। लेकिन हाँ, दी क्वालिटी ऑफ इनपुट जो हमने दिया वो हमारा वर्ल्ड क्लास था, अनमैचेबल था, अनपैरेलल था, बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड था। और इस वजह से हम जो है ये कर पाए। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहता हूँ, और वो एक, मैं थोड़ा सा क्रिकेट का भी शौक रखता हूँ, आप में से बहुत सारे लोग रखते होंगे। आप ये देखिए कि जहां भी भारतवर्ष क्रिकेट खेलने जाता है, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, वो चाहे दुनिया का कोई देश हो, मैक्सिमम पॉपुलेशन और सपोर्टर्स की इंडिया की वहां मिलती है। तो क्यों मिलती है? वो इसलिए मिलती है कि जो ट्रेनिंग हमने दी है, जो शिक्षा दीक्षा उनको दी है, जो ह्यूमन रिसोर्स हमने तैयार किया है, उनकी डिमांड ऑल ओवर वर्ल्ड है। तो अब ये एक जो छोटा सा गल्फ क्रिएट हुआ है आफ्टर 2018, जिसने हमको थोड़ा सा बैकफुट पर ला दिया है, उस गैप को ब्रिज करने के लिए, जैसे हमारी एनडीआरएफ की टीमें होती हैं, जैसे हमारी मिलिट्री एक्सपेडिशंस की टीमें होती हैं, कि वो वॉर फुटिंग पर काम करती हैं और वो इन सिचुएशंस में एक रेडी सॉल्यूशन हमको दे देती हैं। हमको ये मानसिकता अपने में डेवलप करनी है, और केवल अपने में नहीं करनी है, हम जो स्किल सेट तैयार कर रहे हैं, हम जो मैन पावर प्लानिंग कर रहे हैं, हम जो उनकी उनकी हायरिंग कर रहे हैं, हम जो उनको ट्रेन कर रहे हैं, उनमें इन चीजों को इन्फ्यूज करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो आज आवश्यकता इस बात की है कि यह एक जो अघोषित युद्ध हमारे सामने है, जिस पर हमको विजय प्राप्त करनी है, तो वी गॉट टू लुक इनटू दैट व्हाट आर आवर आर्म्स, व्हाट आर द वेपन्स दैट वी हैव टू गेट, किन से हम अपनी मानव संपदा को इतना सुदृढ़ और सुसज्जित कर दें कि जो ये चैलेंजेस हमारे सामने आए हैं। और वो देखिए, सेकेंड वेव में हम परेशान हुए, बहुत ज्यादा हुए, लेकिन सेकेंड वेव की परेशानी ने हमको सजग कर दिया कि हम थर्ड वेव की परेशानी के लिए हम अभी से इतना तत्पर हो चुके हैं, ये आप भली भांति देख रहे हैं। तो ये थर्ड वेव, सेकेंड वेव के बाद जो थर्ड वेव आनी है, अभी हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में जापानीज इंसेफेलाइटिस, डेंगू और ये सब भी बीमारियां आ रही, ये भी हमको हैम्पर करेंगे। बट वी हैव टू श्रग देम अपार्ट। ये आती रहेंगी और जाती रहेंगी। हम जो हैं, हमारा राष्ट्र जो है, वो जो हम जिस तरफ हम बढ़ रहे थे, विश्व गुरु बढ़ने की तरफ, इस अकूत मानव संपदा को लेकर के हमको ये संकल्प लेना है कि जो स्किल सेट्स और जो ट्रेनिंग, जो रिक्रूटमेंट, जो हम डेवलपमेंट अपने ह्यूमन रिसोर्स का करें, तो वो इस प्रकार करें कि उनकी ट्रेनिंग इस तरह की हो, उनका डेवलपमेंट इस तरह का हो
कि वो जब निकल के आए तो एक तपा हुआ कुंदन के भांति सोना हो, जो किसी भी परिस्थिति का मुकाबला करने में अपने आप को सक्षम पाए। एक आखिरी बात मैं और आपसे कहना चाहूंगा, और वो ये है कि हम चूंकि एक शिक्षा जगत से जुड़े लोग, इसी बीच में हमारी नई शिक्षा नीति भी आई है, और नई शिक्षा नीति ने जितना ओपन किया हुआ है, जिस ब्रॉड विजन से ये NEP आया हुआ है, ये एक हमको अवसर भी प्रदान कर रहा है। जहां हम ट्रेडिशनल ग्रेजुएट्स पैदा कर रहे थे, BA BSc BCom विद 3 and 2 सब्जेक्ट, जहां BBA पढ़ा रहे थे विद द स्टेट जैकेट ऑफ पीपल, नाउ द टाइम हैज कम, अब ये समय आ गया है कि हम इनमें ऑलराउंडर्स पैदा करें। अब ये समय आ गया है कि हम बच्चे के बुद्धि कौशल, उसकी इच्छा और उसका रुझान, उसके हिसाब से हम उसको शिक्षित और दीक्षित करें। ये जो आ रहा है, ये नई शिक्षा नीति आई है जो हम अब लागू कर रहे हैं, करने जा रहे हैं, इसके आधार, इसको हमको और भी दिमाग में रखना है जब हम ये हैंड होल्डिंग की बात करते हैं कि गवर्नमेंट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स, तो वी गॉट टू सिट टुगेदर। और मैं ये अनुरोध करूंगा इस माध्यम से, और आप तो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, आपको और केंद्र से बात करने के अवसर मिलते हैं, कि हर मीटिंग में और हर प्लेटफॉर्म पर हमको ये अपील करनी है कि वी हैव टू हैव सच थिंग्स, वी हैव टू हैव सच प्लेटफॉर्म्स वेयर पीपल फ्रॉम ऑल द वॉक्स ऑफ लाइफ आर ड्रॉन टुगेदर, and then they sit together and decide the future of the human resources of the country. आप लोगों ने मुझे अवसर दिया अपनी बात आपसे साझा करने का, और मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी ने मुझे इस योग्य समझा कि मुझे लेक्चर सीरीज 2.0 में अवसर दे। और मैं विशेष रूप से आभार ज्ञापित करना चाहूँगा आयोजकों का, प्रोफेसर श्रीवास्तव साहब का, और त्रिलोचन जी को मैं क्या कहूँ, इनको आभार ज्ञापित करना तो ठीक होगा। मेरा आशीर्वाद सदैव इनके साथ रहा है, रहेगा, और आप सभी जिन्होंने ध्यान से मुझे सुना, मैं आप सबके प्रति भी अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Thank you, sir. On behalf of everyone here, today I thank you, sir, for such insightful and very informative speech. So your knowledge and words are no less than a gem for us. I can confidently say that everyone had a great learning experience today. Surely it will be very beneficial for all the scholars and will certainly take away something from here. Thank you, sir, once again. Now the question answer session has been started. If anyone wants to ask question, can come forward. स्वाति, एक बच्चों में संकोच होता है, तो हो सकता है वो कल ही बात करें। और एक दूसरा जो मेरे 35-36 वर्ष के अनुभव के बाद जो मैंने एक चीज और सीखी है कि ये जो समय हम लोगों ने चुना है ना, ये बड़ा कठिन वाला है। भोजन के बाद 2 बजे के बाद बैठ के और सुनना, वो अपने आप में एक दुरूह कार्य है। और एक बार फिर हम आप सबको पुनः धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने ध्यान से सुना मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद। Okay, so now again, I would like to call Mr. Anup Kumar for the introduction of Chairman, Sir Professor Ashish Srivastava, sir. Thank you, Swati. Now I would like to introduce to all of you the chairperson of the session. He is a dynamic, visionary, and a person with vast experience in the field of education. He has been associated to various eminent institutions such as Visva-Bharati University, Santiniketan, Amity University, Lucknow. He has also been associated with various professional bodies such as External Member Board of Studies in Educational, Aryabhatta Knowledge University, Patna, All India Association for Educational Research, Editorial Board Member, The Signage. He is very highly involved in research work as well, and some of his key research projects are field investigator on a UNICEF project validation of data of primary education in UP,
He has worked as a coordinator of MHRD project, monitoring of SSA inputs in UP. His contribution to the corporate life of university is also remarkable. He is none other than Dean and Head of Department of Educational Studies, Mahatma Gandhi Central University. I welcome you, sir, Professor Ashish Srivastava, to please give some guidance. Thank you, Anup. Before I begin, just let me know whether I'm audible and visible enough. Yes, sir. Yes, sir. Thank you so much. So at the outset, let me express my heartfelt thanks to my very good friend, Professor Trilochan Sharma ji, who is heading this Department of Commerce at Mahatma Gandhi Central University. I guess needless to mention his dynamism, because since last year till date, I have personally witnessed his entire team, which includes Professor Shirish Mishra, Dr. Shubhrato Roy, Dr. Avnish Kumar, Dr. Shivendra Singh, Dr. Ravish Chandra Verma, and all these students, scholars working very hard and making such e-Gyan series and other academic activities memorable, which is beneficial in manifold. Needless to mention the great support and motivation from Honorable Vice Chancellor, Professor Sanjeev Kumar Sharma sir, Honorable Pro Vice Chancellor, Professor G. Gopal Reddy sir, the Campus Director of Deen Dayal Upadhyay Parishad, Professor Pavnesh Kumar ji. So I again congratulate and convey my heartfelt thanks to Professor Trilochan Sharma and entire team for taking this wonderful initiative in the time of pandemic. Friends, today we are fortunate enough to have a great scholar, visionary teacher, and a wonderful human being, Professor A.K. Shukla sir, from the historical and pious piece of land. That is, we all know about Ayodhya, world-known place Ayodhya. Friends, we all heard his wisdom in fascinating manner. Although I am not from management background, I am not from commerce background, I am from education background, but I believe that being a human being and to survive worldly living, every conscious person is a manager. Every conscious person is a manager and understands management. As very rightly mentioned by Professor A.K. Shukla sir regarding the downfall in the rate of recruitment and many other parameters, sir has quoted wonderful statistics on some issues. A worrisome number of people have lost their jobs. And therefore, my dear friends, we all understand the biggest challenge this human resource is facing today are recruitment, our retention, motivation, leadership development, and the overall culture of the institution or the organization, the working ethos. I can say that along with the changing role of human resource management is a move to so to say, to more strategic issues and outsourcing some functions so that they can best manage and grow their organization, their company, their institution, that too cost effectively. Very precisely, if you talk about 21st century, as I can see, plenty of students are listening to the series. So if you talk about only about 21st century, the human resource has to handle many challenges. That is change management, conflict management, then managing multi-generational workforce, managing workforce diversity, globalization, striking work-life balance, succession planning, etc. Here I have mentioned only the challenges which relates to 21st century only. Now, needless to mention that COVID-19 has triggered towards worsened situation in both, as Professor Shukla rightly mentioned, organized and unorganized sectors. Friends, I'm sure you will be agreeing with me. Who on this earth has ever thought that challenges this 2020 would bring? Such challenges.
Human resource professionals have certainly not imagined about the challenges which COVID-19 has has put on them. The uncertainty, all uncertainty, Professor Shirish Mishra in his welcome address, then Professor Shukla in his detailed address, all uncertainty has crushed the economy. Employees are in a very stressful situation, anxious situation. They are in agony. But human resource professionals have to try their best. They are trying their best to keep everything in right perspective. Everything in right perspective. And all must be aligned towards meaningfulness. Professor Shirish Mishra, in his welcome address, has very rightly mentioned about the sudden shift due to COVID-19, and we all are aware that sudden shift in work culture has brought new challenges for human resource. This overall sudden shift in the work culture has brought new challenges for human resource. The top priority, therefore, my dear friends, for human resource professionals is now crisis response and how to keep the employees engaged, provide the right communication channels and tools and other sources, other helps for remote working and many more parameters. Friends, with my, as I said that I'm not from management or commerce background, I'm from education background, but with my common sense, we have very important human resource challenges that managers, human resource professionals are facing due to COVID-19 outbreak, and these are the challenges where we need to reflect, we need to think. And I can cite few challenges as mental health and well-being is a major challenge. Managing remote work, lack of agility, employee communication, uncertainty, employee engagement. So these are few very common challenges which human resource professionals, managers are facing due to COVID-19 outbreak. I'm very happy to listen Professor A.K. Shukla sir, who very rightly mentioned that National Education Policy 2020, which has a great vision, is going to focus on multidisciplinarity. And therefore, my dear friends, in future, this focus on multidisciplinarity will be highly beneficial in years to come, where we will not be thinking only discipline based in a rigid manner, in a confined manner. Friends, I will not take much time. Now I will conclude my words by referring a book. And this is a wonderful book. I have personally read this book, written by Navi Radzau, Jaideep Prabhu and Simone Ahuja. The title of the book is Jugaad. And because the authors could not find the appropriate word, therefore in English version they have given innovation. So the title of the book is Jugaad in Hindi, English version is innovation. And the foreword of this book has been written by Ratan Tata. It's a wonderful book. Why I'm referring this book, because as Professor Shukla mentioned about seeking opportunity in diversity, this particular book, Jugaad, is based on 6 principles. And I must urge from this platform, thanks to Professor Tirulochan Sharma ji, to all my students of commerce, management, and irrespective of discipline, to read this book once. And these 6 principles are truly relevant so far as a HR professional is concerned, a manager is concerned, a teacher is concerned, whosoever an entrepreneur is concerned. So these 6 principles are: principle 1 is seek opportunity in adversity. Principle 2 is do more with less. Principle 3 is think and act flexibly. Principle 4 is
keep it simple. Principle 5 is include the margin, and principle 6 is follow your heart. This whole book is based on these 6 wonderful principles which Professor Shukla has highlighted in his deliberation. I'm very happy and highly impressed to see that the way this Department of Commerce is grooming its students by giving organizing opportunity. I can see that several students, Anup, Swati, were presenting and organizing this event. So I'm very happy and highly impressed to see this this kind of grooming of students. I'm sure that these students are truly blessed to have teachers like you. So thank you so much, Professor A.K. Shukla sir. Thank you so much. Thank you for your words of wisdom. We are truly blessed indeed. Thank you so much once again, Professor Trilochan Sharma ji and team, for inviting me and giving me this wonderful learning opportunity. Thank you one and all. Stay safe. Thank you. Thank you so much, sir. Now, for vote of thanks, I would like to call our Professor Dr. Ravish Chandra Verma, sir. Sir, please. थैंक यू श्रुति। आज के इस प्रोग्राम में जो कि 8वां चैलेंजेस इन HR ड्यूरिंग एंड पोस्ट कोविड-19 एरा में प्रोफेसर शुक्ला सर जी ने कई ऐसी बातें बताई जो हमें वर्तमान समय में प्रभावित तो कर रही हैं, लेकिन हमें आशा भी दिखाती हैं कि हम किस तरह से उन चुनौतियों से आगे उभरे। साथ ही साथ इस बात का उन्होंने ध्यान इंगित कराया कि किस तरह से जो मिडिल इनकम ग्रुप है वो ग्रुप किसी भी कंट्री में कंट्रीब्यूट कैसे कर सकता है, वो चाहे अपने एफर्ट से हो, अपने सेट ऑफ स्किल से हो, डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर से हो, उनका क्या रिएक्शन हो, इस चीज को उन्होंने चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज के माध्यम से हमें बताया। प्रोफेसर शुक्ला सर, जैसा कि हमारे बीच प्रोफेसर त्रिलोचन शर्मा जी ने, हमारे जो विभागाध्यक्ष हैं, उन्होंने इस बात को रेखांकित किया है कि वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के मर्मज्ञ हैं, ज्ञाता हैं और बहुत ही कम शब्दों में और एक डेफिनिट टाइम पीरियड में काफी कुछ एक नई रेखा, एक नया अवसर हमें जानने के लिए दिया है, जिससे कि हम कुछ सीख पाए। हमने उनके इस लेक्चर में काफी कुछ सीखा है, नई बातों को जाना है और आशा और उम्मीद भी करते हैं कि इससे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं पीजी लेवल के, साथ ही साथ जो पीएचडी के स्कॉलर्स हैं, उनको कई आयाम देखने को मिले, समझने को मिले, जानने को मिले, जिससे वो अपने ज्ञान का वर्धन कर पाएंगे, अपने ज्ञान को प्रोत्साहित कर पाएंगे, अपने ज्ञान को का भंडार बना पाएंगे। प्रोफेसर शुक्ला सर को मेरा प्रणाम और बहुत बहुत आभार, जो कि उन्होंने इस कार्यक्रम में अपनी वाणी से हम सबको प्रकाश किया, हम सबको एक तरह से प्रोत्साहित किया कि किस तरह से हमें इस चुनौती करना है, किस तरह से इस चुनौतियों से आगे बढ़ के कार्य करना है। आगे धन्यवाद के क्रम में हमारे डीन ऑफ स्कूल प्रोफेसर आशीष श्रीवास्तव जी, जिन्होंने अपनी वाणी से हम सभी छात्रों को, हमारे सभी रिसर्च स्कॉलर को अपना शुभाशीष प्रदान, हम उनका धन्यवाद देते हैं। विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर त्रिलोचन शर्मा जी, जिनके देखरेख में, जिनके पूरे संयोजन में ये कार्यक्रम ई ज्ञान सीरीज संचालित हो पा रहा है, जिनके कुशल मार्गदर्शन नेतृत्व में हम सब अपना सर्वोत्तम देने का प्रयास कर रहे हैं, हम उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। कार्यक्रम से जुड़े हुए हमारे विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर शिरीष मिश्रा जी, उनका मैं धन्यवाद देता हूं। डॉक्टर शुभ्रत राय सर, उनको भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी से जुड़े हुए जो लोग हैं हमारे साथ के, डॉक्टर शिवेंद्र सिंह जी, डॉक्टर सुमिता सिंकू मैम, श्री अवनीश कुमार जी, आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूं। कार्यक्रम में जो अन्य विश्वविद्यालय के शिक्षक जुड़े हुए हैं, उनका भी मैं धन्यवाद देता हूं। उन्होंने पूरे सहयोग के साथ, पूरे मन के साथ इस कार्यक्रम में हमारे जो कीनोट स्पीकर हैं उनकी बातों को सुना, सहयोग दिया। हमारे रिसर्च स्कॉलर, उन सभी का धन्यवाद, जिससे
हम उम्मीद करते हैं कि आगे हमारे जो प्रोग्राम है वो इसी तरह से आपके सहयोग मार्गदर्शन में संचालित होते रहे, क्योंकि लाइट है यहाँ और एक कंडीशन ये है कि ये यहाँ पे बारिश की वजह से ह्यूमिडिटी है और मुझे लगता है कि लाइट होने के बाद भी मैंने फैन ऑन नहीं किया है, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से मेरी आवाज शायद आप तक पहुंच पा रही हो, इसलिए मैंने फैन ऑफ करके रखा हुआ है। मैं माफी चाहूंगा इसके लिए और मैं अब अपने कार्यक्रम के एंकर स्वाति को ये हैंडओवर करता हूँ। थैंक यू स्वाति। Thank you, sir. Now, at the end of the program, I request you all to stand at your place for the national anthem. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। Thank you all. थैंक यू वेरी मच सर। धन्यवाद सर, आशीष सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला। थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद तो आपका, आपने अवसर दिया सर। अरे सर कुछ सीख पाया मैं आज। सर आशीष सर का ऐसा लगा, आशीष सर एजुकेशन का टीचर है लेकिन आज मैनेजमेंट एंड कॉमर्स के बारे में जो बोला है वो तो मुझे लगता है बहुत लगता है। सुब्रत जी, एजुकेशन हर जगह है, वो मैनेजमेंट में भी है, कॉमर्स में भी है, इकोनॉमिक्स में मैथमेटिक्स में भी है। ऐसा ही लग रहा है, बहुत ही अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। और आशीष सर तो एजुकेशनल मैनेजमेंट के आदमी है। एकदम सही बात। ठीक है सर, थैंक यू। शुक्ला सर शायद चले गए।